Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today students we are studying subject history of class 8th and this is the second chapter. Let's begin. Company rule expands. कंपनी का फैलता शासन. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया. Instead, it is used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया. After the Battle of Buxar 1764, the company appointed resident in Indian states. बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए. They were political or commercial agents and their job was to serve and further the interest of the company. उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था. Through the residence, the company official began interfering in the internal affairs to Indian states. रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे. They tried to decide who was to be successor to the throne and who was to be appointed in administrative post. Sometime in company forced the states into a subsidiary alliances. According to the term of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. अगला राजा कौन होगा और किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे. कई बार कंपनी ने रियासतों के सहायक संधि भी थोप दी और जो राज्य इन बंदोबस्त को मान लेती थी उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था. They were to be protected by the company. और उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था और कंपनी की तरफ से सुरक्षा उसे मिलती थी. लेकिन had to pay the subsidiary forces that company was supposed to maintain for the purpose of this protection. और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेज़ली वाज गवर्नर जनरल 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay the subsidiary force. Hyderabad was also forced to cede territory on similar grounds. उदाहरण के तौर पर जब रिचर्ड वेलेज़ली गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया और क्योंकि नवाब सहायक सेना के पैसे अदा करने में चूक गए थे, इसके आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे. What power did the resident have? रेजिडेंट की ताकत क्या होती है? This is what
James Mill, the famous economist and political philosopher from Scotland, wrote about the resident appointed by the company. कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, We place a resident who really is a king of the country. दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है. Whatever injustice of non-interference he may act under, और उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं. As long as the prince act in perfect subservience, he does what is agreeable on the residents. जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो उसे चीजें आराम से चलती रहती हैं. That is to British government, things go on quickly. They are managed without the resident appearing much in administration of affairs. और शासन के कामकाजों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है. But when anything of different nature happens, the moment the prince takes a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance. और जब कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है. टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर. टीपू सुल्तान शेरे मैसूर. The company resorted the direct military confrontation when it saw the threat to its political and or economic interest. This can be illustrated with the case of Sultan, Southern Indian state of Mysore. जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया और दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 82, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. हैदर अली, जिसका शासनकाल 1761 से 1782 तक था, उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिसका शासनकाल 1782 से 1799 था, ऐसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था. मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डमम. मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी. In 1785, टीपू सुल्तान stopped the export of sandalwood. 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया. एंड disallowed local merchants from trading with the company, और अपने सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया. He also established a close relationship with French in India and modernized his army with their help. टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण से किया उसमें और आधुनिकीकरण लाया गया. द ब्रिटिश वर furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous ruler who had to be controlled and crushed. टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे
और अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी होता है। 4 wars were fought with मैसूर। ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी था। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 बार जंग हुई। ओनली इन लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। 4 बार जंग हुई और श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। टीपू सुल्तान was killed defending his capital Srirangpattam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars and the subsidiary alliance was imposed on the state. राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। Okay students, thanks for being with us.